नहीं, नहीं. So this act is there in 125 countries. I will give some background information. Why this India's act, Right to Information Act in India, is unique among all the 125 countries which has got this type of act. Because in our act, there is a clause, penalty, time limit, and independent appeal, which is not there in any other countries. मतलब भारत में अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर समय पर सूचना नहीं देता है तो उसको पेनल्टी लगा सकती है, और उसके लिए सीपीआईओ के पास टाइम लिमिट फिक्स है कि अगर वो 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है. तो इस तरह के कुछ यूनिकनेस है विच आर देयर इन इंडियन एक्ट ओनली. देयर इज नो सच penalty, time limit, and independent appeal in any other countries. Right to Information Act is the most patent tool, strong tool in the hands of Indian normal public, Indian general public against the lax government. This act was passed on 11th May 2005. President has given his consent on 15 June 2005. Publication in the Gazette on 21st June 2005. Appointment of public officer. As I told, the earlier act, Freedom of Information Act, could not be implemented because there was some lacunas. But in this act, it was told in 100 days, each public authority has to appoint an information officer to give the information. And 120 days after the implementation of this act, information should start flowing. ये एक्ट क्यों पास किया है? गवर्नमेंट का विचार था कि पब्लिक डीलिंग में इन एनी अदर सिस्टम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू बी देयर. अभी तक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई अकाउंटेबल नहीं होता है क्योंकि देयर आर मेनी चैनल्स. तो उसको अकाउंटेबिलिटी पकड़ने के लिए या अकाउंटेबल ठहराने के लिए देयर इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और टू कंटेन करप्शन. दीज आर द मेन aim for this RTI implementation. इस एक्ट में आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं. आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कॉपीज ऑफ द इंफॉर्मेशन, एनी फाइल which you want to say which has affected you or your organization or any way you are suffered, you can ask for that file to have visual inspection. You can obtain the copies of that notings which are there in the file against you. You can collect the sample material and that sample will be used as information. For example, some road is under construction near your home, and if you feel that the cement which is being used there is not of the good quality, so that collection of that cement sample will be a information. It will be treated as information, and you can sue that contractor or that department for bad road works. ये सूचना अधिकार में जो इंफॉर्मेशन शब्द है उसका मीनिंग बहुत ही वाइड तरीके से दिया गया है. इसमें सब गवर्नमेंट की या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हर तरह की सूचना इसमें आ जाती है. तो जैसे मैंने इसमें बोला है, इंफॉर्मेशन मींस एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, डेटा, मटेरियल हेल्ड इन एनी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली विल बी ए इंफॉर्मेशन. सूचना मानी जाएगी, और आप any general public has a right to get that information. इस अपने जो भारत का सूचना अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, उसमें all other private bodies are also covered. Information relating to any private bodies which can be accessed by public authority will also come under this act.
इसको मैं थोड़ा आपको ज्यादा जानकारी दूंगा कि ये जो PSUs गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अब बोला गया था कि आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट कीजिए एंड हु विल गिव द इंफॉर्मेशन। बट देयर आर मेनी प्राइवेट बॉडीज लाइक बैंक है, प्राइवेट बैंक्स हैं, और एनी प्राइवेट कंपनीज हैं, they are not supposed to appoint a public information officer under this act. However, they are covered under this act through any government bodies like private companies hain. They are registered with company registrar of companies. So if I want some information about any private companies, what they are producing, how much they are producing, how much tax they have paid, what is the employee number, so I can approach a public information officer of registrar of companies, and I can ask that PIO, public information officer, kindly get me this information from this private company. Or you can say banks है, कोई private bank है, रूपी बैंक है, ये बैंक है, cooperative banks है, they are not supposed to appoint PIO. However, I can ask Reserve Bank of India PIO information officer of RBI to obtain that information from you from that bank, because in India all the banks and private banks are covered by controlled by Reserve Bank of India. So directly or indirectly you can say all organizations in India, they are covered under this act. मैंने पहले आपको बताया कि ये इंडिया में पूरे लागू है एक्ट 2005 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ आपको जैसा कि विदित होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया है, so soon JNK will also follow this RTI 2005. All offices owned and substantially owned, financed by central government, NGOs, executives, judiciary, legislator, all are covered under this act. Union territories में ये act लागू है, पंचायत, municipalities, local bodies, NGOs, this act is applicable. Information relating to private body, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी प्राइवेट बैंक की इंफॉर्मेशन आप रिजर्व बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू ले सकते हैं। इस एक्ट में खाली आप सूचना मांगा सकते हैं, ले सकते हैं, इसके अलावा उस ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट्स को आप देख भी सकते हैं। यू कैन इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स इन दैट पब्लिक अथॉरिटी. You can take notes, extract, certified copies of the records. You can ask the information officer samples of the material. जैसा कि मैंने आपको बताया सीमेंट का सैंपल चाहिए, अब ले लीजिए सैंपल, सर्टिफाई करके लीजिए ऑफिसर से, and you can get that cement samples test in some laboratory and you can sue that organization, that contractor for the bad cement or bad any material which has been of not standard quality. Then okay, you can obtain the information in the form of diskettes and floppies also. You can ask, okay, you can have give me this pen drive. I want all records of your this file. You can ask. Government wants that people need not to ask about you information. You should be proactively disclose the information. But ऐसा इंडिया में आपने देखा होता नहीं है, कोई अपने आप बताता नहीं जब तक माँ कोई इंफॉर्मेशन मांगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। एंड दूसरा मेथड है आप एप्लीकेशन देके, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यू कैन आस्क द इंफॉर्मेशन। हर गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटीज को बोला गया है आपके यहाँ एक PIO होना चाहिए और उसको हेल्प करने के लिए APIOs भी होना चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का मैं जैसे PIO अपॉइंट हुआ था, मेरे पास 5 असिस्टेंट PIOs भी थे। एंड इनफैक्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी बिग, इट वर्क्स ऑल इंडिया बेसिस, सो वी हैव APIOs एट ऑल द पावर स्टेशन विच वी हैव ऑल ओवर इंडिया। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, वहाँ APIO था। कल्पाकम मद्रास पावर स्टेशन, वहाँ एक APIO था। तो मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी, दो APIOs मेरे को मदद करते थे टू ऑब्टेन दैट इंफॉर्मेशन। अब मैं कुछ शॉर्ट में बताऊंगा आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सूचना प्राप्त करनी है उसके लिए आपको क्या करना है।
तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा राइटिंग में पीआईओ को और उस डिपार्टमेंट के एपीआईओ को। यहाँ पर मैं एक आपको और थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उनको सीपीआईओ बोला जाता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उनको स्टेट एसपीआईओ बोला जाता है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास, पीआईओ के पास जाकर राइटिंग में एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको कोई कारण नहीं देना है कि ये आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है, क्यों चाहिए है। न तो आपको आपके पर्सनल डिटेल देने हैं कि भैया आप कौन है, क्या है, व्हाई यू वांट दिस इंफॉर्मेशन, नो नथिंग। खाली आपका नाम और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर या एड्रेस, जहां पर कि मैं एज ए सीपीआईओ इंफॉर्मेशन आपको भेजूंगा। तो बहुत ही सिंप्लीफाई किया है भारत सरकार ने ये एक्ट को कि कोई भी सिटीजन, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति किसी भी पीआईओ के पास जाके कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए मांग कर सकता है। जैसे ही एप्लीकेशन आती है एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मुझे 3 काम करने हैं इमीडिएटली। पहला, वो एप्लीकेशन मुझे एक्सेप्ट करनी है। दूसरा काम, अगर वो जो सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो मेरे पास नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है, तो वो एप्लीकेशन मुझे किसी करेक्ट सीपीआईओ के पास ट्रांसफर करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2-4 लोग आए थे एटॉमिक एनर्जी में कि हमारे प्रोविडेंट फंड का बैलेंस कितना है, हमें मालूम करना है, हम इस कंपनी में काम करते हैं, ये हमारा प्रोविडेंट फंड नंबर है, पीपीओ नंबर है। अब ये इंफॉर्मेशन तो एटॉमिक एनर्जी का सीपीआईओ मैं कैसे दे सकता हूं? तो मेरा काम बनता था कि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना। मैं उसको नहीं बोल सकता कि भैया तुम यहाँ कहाँ आ गए, पीआईओ के पास जाओ। मैं उसको नहीं बोल सकता था कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, ये इंफॉर्मेशन तो गवर्नमेंट का जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस है बांद्रा में, उनके पास जाइए, वहां मिलेगी। नहीं, मेरे को 5 दिन का समय दिया गया है, 5 दिन का समय दिया गया है टू ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन टू द करेक्ट पीआईओ। और थर्ड ऑप्शन मेरे को दिया है रिजेक्टेड, कि अगर वो एप्लीकेशन में जो सूचना मांगी गई है वो मैं नहीं दे सकता, तो वो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा ऑन द स्पॉट विद द रीजन। ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकता कि भाई मैं ये नहीं दूंगा, व्हाट रीजन आई एम रिजेक्टिंग दैट, आई हैव टू एक्ट। सो द मोमेंट मेरे पास एप्लीकेशन आती है, मुझे एक्सेप्ट करना है, ट्रांसफर करना है और रिजेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोविडेंट फंड ऑफिस की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। 5 दिन का समय दिया गया है, 5 दिन वो एप्लीकेशन मुझे करेक्ट पीआईओ को ढूंढ के, मेरा काम है कि वो जो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक या ये कोई भी जो जनरल पब्लिक का आदमी मेरे पास आया है सूचना के लिए, वो इंफॉर्मेशन चाहता है, वो किस इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे होगी, वो ढूंढ के वो एप्लीकेशन मुझे 5 दिन के अंदर उसके पास ट्रांसफर करनी है। अगर मैं वो रिजेक्ट करता हूं तो मुझे रीजन देना है क्यों मैं रिजेक्ट करता हूं, और उसको अपील के लिए प्रोसेस बताता हूं। जैसे मैंने बताया कि भारत में का जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो यूनिक है वर्ल्ड में। उसका कारण एक ये भी है कि अगर पीआईओ कुछ इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करता है तो वो क्यों रिजेक्ट किए वो जस्टिफाई करता है। उसके अलावा भी अगर वो सिटीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है टू द हायर अथॉरिटी। तो ईच डिपार्टमेंट इज हैविंग ए अपीलेट अथॉरिटी जो कि पीआईओ से ऊपर होता है, एंड ही असेस द इंफॉर्मेशन व्हाई पीआईओ हैज रिजेक्टेड द इंफॉर्मेशन, और टाइम लिमिट इज 30 डेज। मैंने अपने को, आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी को कि जो मुझे सूचना मिली है वो बराबर नहीं है, या गलत है, आदि है, कुछ भी है, वो अपील कर सकते हैं आप। कौन सी सूचना नहीं देनी है, मैं तो, मेरे को पहला फंडामेंटल रूल है कि सब सूचना देनी है,
लेकिन देयर इज अ क्लॉ कि अंडर विच सेक्शन या अंडर विच क्लॉज आई कैन नॉट डाइवर्ज द इंफॉर्मेशन। तो पहला है अफेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसी कोई भी सूचना जिसके कारण भारत सरकार की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी से को इफेक्ट पड़े, फॉरबिडन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने बोला कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो अगर वही सूचना अगर वो मुझे मांगता है, कोई सिटीजन, जैसे हमारे यहाँ काफी केसेस हुए थे कि जिसमें किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया था और उसको सस्पेंशन में उसको जो सस्पेंड ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर किसने इशू किया, कैसे इशू किया, कौन सी फाइल में, उसने सब मांगा। लेकिन बिकॉज द मैटर वाज इन द कोर्ट, so I have not divulged those details, then would cause breach of privilege of parliament and state legislature। ऐसी कोई भी सूचना जो हमने पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन को देनी है, बीच ऑफ प्रिविलेज होता है, वो नहीं देनी है। इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, राफेल का, भारत सरकार ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं, वो राफेल ने उनको काफी चीज प्रोवाइड की होगी एडिशनल। इफ समबडी वांट दैट इंफॉर्मेशन, तो द एयरफोर्स का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो नहीं देगा, बिकॉज इट इज ऑफ कमर्शियल कॉन्फिडेंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और राफेल ने जो इंफॉर्मेशन दी है, सूचना दी है, वो डाइवर्ज नहीं करेगा। अप टू ए लिमिट, अप टू ए पार्शियल ही कैन डाइवर्ज, कि भाई हवाई जहाज कितने 1000 फुट पे जाता है, कितनी स्पीड है, उसकी कितनी कॉम्बैट कैपेसिटी है, तो पार्शियली ही कैन डिस्क्लोज, बट फुल्ली ही कैन विदहोल्ड दैट इंफॉर्मेशन which is of commercial confidence, trade secret and intellectual property right. Information available to a person in fiduciary relation, ये इंग्लिश का शब्द है fiduciary relation, ग्रीक वर्ड है। इसमें क्या होता है कि एज ए सपोज मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास मेरे पेशेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या तकलीफ है, उसको कैंसर है, उसको बीपी है, क्या है, व्हाट एवर मे बी, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन आई रिसीव्ड एज, बिकॉज ही इज माय पेशेंट। या वकील होता है, वकील का कोई क्लाइंट होता है जो कि उसका वकील को हायर करता है फॉर टू फाइट हिज केस, तो बहुत सारी सूचना वकील के पास होती है। सो दैट सूचना जो वकील के पास है या डॉक्टर के पास है, वो बिकॉज ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन के कारण है, सो दैट कैन नॉट बी पार्टेड, दैट डॉक्टर और एनीबडी कैन इज नॉट सपोज टू पार्ट दैट इंफॉर्मेशन विच दे रिसीव्ड ड्यू टू फिड्यूशियरी रिलेशन। कई सूचना इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया राफेल प्लेन खरीदा है, तो फ्रांस गवर्नमेंट ने नेचुरली कुछ दिए होंगे काफी डिटेल्स, सो दैट कैन नॉट बी पार्टेड। देन सम सूचना इंडेंजर द लाइफ एंड पब्लिक सेफ्टी ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सीबीआई को किसी ने बताया कि ये यहाँ कुछ स्मगलिंग हो रहा है, या किसी पुलिस के डिपार्टमेंट को किसी आदमी ने सूचना दी थी कि यहाँ भी गोल्ड स्मगलिंग हो रहा है मेरे बाजू वाले घर में, मैंने रात को देखा 12 बजे कुछ एक ट्रक आया, उसमें से कुछ पेटियां उतारी गई, उसमें आई डाउट कि मैं उसमें सोना है। उसके बाद अगर वो अथॉरिटी उसके ऊपर रेड करती है और उसको पकड़ा जाता है, तो वो जो अफेक्टेड पार्टी है वो इंफॉर्मेशन एक्ट में नहीं पूछ सकती कि आपको ये सूचना किसने दी है कि मेरे घर में सोना है या मेरे घर में रात को कुछ एक्टिविटी हुई है, बिकॉज इट विल अफेक्ट इट विल पुट दैट फेलोज लाइफ इन डेंजर। तो मेरे पास सूचना है कि भैया मेरे को कहाँ से कॉल आया और किसने मुझे बताया कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो सूचना मुझे नहीं देनी है। इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसी एम्प्लॉय का सस्पेंशन का केस चल रहा है, अगर वो बीच में ही सूचना मांगता है कि किसने मेरे को कंप्लेन किया है या मेरे अगेंस्ट में क्या है, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज ऑन, देन सूचना नहीं देने की है। कैबिनेट पेपर्स, जो मंत्रालय के जो मिनिस्टर्स के पेपर्स होते हैं, डिसीजन होते हैं पीएम ऑफिस में, वो नहीं देने की। पर्सनल इंफॉर्मेशन, अनवारंटेड इन्वेजन इन द प्राइवेसी ऑफ पर्सन, अगर मेरे को किसी एम्प्लॉय की काफी जानकारी है, मेरे जो एनपीसी न्यूक्लियर पावर में कोई एम्प्लॉय है, उसकी फाइल मेरे पास है, उसमें बहुत सारी जानकारी होती है, अगर कोई उसकी जानकारी मांगे तो मुझे पार्शियल इंफॉर्मेशन ही देनी है कि भैया ये हमारे यहाँ एम्प्लॉय है, इसकी इतनी ये ग्रेड में है, इसकी इतनी सैलरी है, दैट्स ऑल, पार्शियल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी कुछ मेरे पास है होते हुए भी मैं नहीं दूंगा, जैसे कि उसकी वाइफ है, कहाँ काम करती है, उसके बच्चे कितने हैं, उसकी लड़कियां कितनी हैं, उसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है गवर्नमेंट सर्वेंट की फाइल में, सो दैट कैन नॉट बी पार्टेड। तो अगर कोई सिटीजन आता है
पीआईओ के पास, और ये अंडर दिस क्लॉज कोई इंफॉर्मेशन मांगता है जो कि मैंने आपको बताया, ये जो क्लॉज, उसमें अगर वो इंफॉर्मेशन फिट होती है, I can straight away reject that application. I will not accept. I have accepted the application and I will give him a reply immediately. I am rejecting your application and I cannot provide you this information. But कई बार आपने देखा ऐसा होता है कि in the larger public interest कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है, बिकॉज इन द पब्लिक इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में किसी लेडी ने मुझसे पूछा कि ये मेरे जो हस्बैंड है उनकी सैलरी डिटेल्स एंड उनके पीएफ डिटेल्स एंड उनके प्रोविडेंट फंड का नॉमिनी कौन है वो मुझे चाहिए. अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई तो मैं रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन आफ्टर एनालिसिस आई फाउंड that there is a friction between the employee and his wife and the court case for divorce is going on, and by giving me this information to the lady will help her in her divorce case or to fight her case. So I parted that information. His salary is this much, he has nominated some who not as a wife को nominate नहीं किया था provident का, और किसी lady को किया था. So who is that person? Then what is his actual salary? Because that man has shown to the court that he is getting 10,000 rupees salary only, because he has taken lot of loan from Provident Fund and from other cooperative societies from that our office. So all there were 30-40,000 rupees deductions were there every month. So he was getting hardly very small salary, and he has shown that only that is my income per month, and I can part 50% of this income as a alimony to that lady. But by my parting this information, because it was in the public interest, I have given all the details of application that lady which she wanted. Then last and important information which cannot be denied to parliament and state legislator cannot be denied to that person. He is also entitled for that information. मैंने एप्लीकेशन प्राप्त की, मेरा काम एज ए पीआईओ, मेरे एप्लीकेशन प्राप्त की, उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है तारीख के साथ में कि आज मैंने आपकी एप्लीकेशन प्राप्त की और मेरा क्लॉक स्टार्टेड, माय क्लॉक स्टार्टेड वर्किंग, बिकॉज फ्रॉम दैट डेट आई हैव बीन गिवन 30 days टाइम कि आई हैव टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द पर्सन. बट सपोज वो मुझे एप्लीकेशन देता है और जो 10 रुपए इसमें फी है, नाम मात्र फी रखा है भारत सरकार ने 10 रुपए, अगर वो 10 रुपए नहीं जमा करता तो मेरा क्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है. सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू टेक द एप्लीकेशन, आई हैव टू टेल हिम कि यू पे ₹10 टू द माय कैशियर, माय अकाउंटेंट, एंड ब्रिंग द रिसीट. ही ब्रिंग्स द रिसीट, देन माय क्लॉक स्टार्टेड. 30 दिन का समय मेरा चालू हो गया. 10 रुपए वो कैसे भी दे सकता है, बाय वे ऑफ कैश, डीडी, ब्रोकर चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, मेनी मेथड्स आर देयर. He can put, वो बोल सकता है कि भाई मेरे पास 10 रुपए कैश नहीं है, तो he can give bank check or he can give postal order, many ways are there. Then जब मैं उसको इंफॉर्मेशन दूंगा, वो एक आध 2 पेज वगैरह रहेगा तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन सपोज 10 पेज है, 20 पेज है, तो आई कैन आस्क हिम टू डिपॉजिट 2 rupees पर पेज एज ए एडिशनल फी. और लार्जर साइज पेपर, किसी ने ड्राइंग मांग लिया कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग का मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाके अगर कोई बोलता है कि जो मेरे बाजू में बिल्डिंग बन रही है इसकी मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए अलॉन्ग विद ड्राइंग, तो वो ड्राइंग का जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो वहां का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको बताएगा भाई कि ये 200 रुपए लगेंगे, ये 100 रुपए लगेंगे, आपको हम ड्राइंग भी दे देंगे. देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सैंपल्स एंड मॉड्यूल्स. अगर कोई सीमेंट वर्क इज गोइंग ऑन, रोड कंक्रीटिंग वर्क इज गोइंग ऑन, और मैं सीमेंट एज ए सैंपल लेता हूं और वो सैंपल इज ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन, देन आई कैन आस्क हिम द कॉस्ट ऑफ दैट सैंपल कि भैया 400 रुपए बैग का कॉस्ट है, आप आधा बैग सीमेंट ले जा रहे हैं तो आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए. So actual cost of samples or any models or modules, whatever maybe, I can ask as a PIO. No fee for inspection. अगर वो मेरे पास सूचना मांगने आता है और वो कहता है मुझे खाली फाइल देखना है, तो नो फी.
1 घंटा मेरे ऑफिस में बैठ के वो फाइल मैं उसको दिखा दूंगा। 5 रुपए हर 1 घंटे के बाद। अगर 2 घंटे तक इंस्पेक्शन कर रहा है तो मैं बाद का घंटा उससे 5 रुपीज मांग सकता हूँ। एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्केट वॉटर पेन ड्राइव में अगर वो मांगता है तो मुझे देना पड़ेगा ना। एक्चुअल कॉस्ट आई कैन चार्ज हिम कि भैया आप इतने रुपए दे दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन इन फ्लॉपी डिस्केट पेन ड्राइव। 2 रुपीज पर पेज मैंने आपको बताया। प्रिंटेड फॉर्म में फाइल में उसको जेरोक्स लेना है तो मैं उसको अलाउ करूंगा वो फाइल का पेजेस का जेरोक्स लेने का, और 2 रुपए पर पेज उसको फोटोकॉपी का देना पड़ेगा। PIO कैन रिजेक्ट, मैंने आपको रीजंस बताया कि मैं आई कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। एक सेक्शन 9 दिया गया है जिसके अंदर कि मैं ये बोल सकता हूं कि आई एम नॉट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज कॉपीराइट का उल्लंघन है। Any information ordinarily provided in the form in which it is sought, वो कुछ मांग रहा है, जेरोक्स मांग रहा है तो मैं जेरोक्स दे दूंगा, वो कुछ नोटिंग लिख के मांग रहा है तो मैं लिख के दे दूंगा। बट आई हैव टू सी इट कि इट शुड नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्स द रिसोर्सेज ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुझे बोल रहा है कि ये मुझे आपकी 14 फाइल है मेरे पास और 14 फाइल की मुझे लिख के दे दो, तो मालूम पड़ा कि मैं पूरा 1 महीने तक बैठा हूँ वो सब उसको राइटिंग करते हुए, उसकी जेरोक्स निकालते हुए 14 की 14 फाइल की। सो एट दैट टाइम आई हैव टू सी दैट आई आल्सो आई शुड नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। एक सेक्शन 7(9) बोला गया है जिसके अंदर की मैं वो इंफॉर्मेशन डिनाई कर सकता हूँ। सेक्शन 10(1) है जिसके अंदर part records can be diverted. Part access may be provided to a part of the record which does not contain any information which is exempt from the disclosure under this act, which can be reasonably severed from any part of that file. जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने, एयरफोर्स ने राफेल हवाई जहाज खरीदे, and somebody wants to see that file or some details of that about Rafale, so that information officer can divulge only part of the records, only part, and he can hide the important portion of that file under which that purchase of aircraft, gun, or whatever maybe any material which government has purchased, and they don't want to divulge that details because it will affect the copyright also. Some pump manufacturer came to me and he want to see the pump of file of Jyoti Pumps Baroda कि मुझे वो फाइल देखनी है, तो मैंने उसको दिखाई, तो I have hide the main details of that and only purchase order copies and quotation कि because he was doubting कि भैया मेरा quotation कम है और आपने ज्योति पंप को ऑर्डर दे दिया है, तो उसको मैंने फाइल दिखाई, लेकिन पूरी फाइल नहीं दिखाई। पूरी फाइल में मैंने बंद कर दी आधा पोर्शन, और जो लास्ट पोर्शन जो इम्पोर्ट उसको देना था इंफॉर्मेशन, परचेज ऑर्डर की कॉपी, नोटिंग्स कि हमने क्यों ज्योति पंप सिलेक्ट किया, सब उसको दिखाना पड़ा। That is called partial disclosure. I told you this comes under section 10(1)(2) partial disclosure. इंफॉर्मेशन तो दिया लेकिन पार्शली दिया। 30 days का मुझे उसको टाइम बताना है। आफ्टर रिजेक्शन आई हैव टू टेल हिम 30 days you have to appeal. And who is the appellate authority? In our organization only there is a senior person who was the appellate authority. So I have to direct him to that. After 30 दिन के बाद में, 30 दिन के अंदर मैं 30 दिन में इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप 30 दिन के अंदर Mr. So and so, you contact, he is the appellate authority of our organization, and you put up your case कि भाई why you are not satisfied with the information. So that comes under section 7(8). ये मैंने आपको बताया, रिसीव एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट, इंटीमेंट, फी टू बी रिमिटेड, 30 days का टाइम है, 30 days में मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है। There is a information which as a PIO has to part 48 hours. Very important clause कि 48 घंटे में सूचना देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में
ये आपके बाजू में, घर के बाजू में किसी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है एंड उसकी वाइफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास पहुंचती है, पुलिस डिपार्टमेंट की, मेरा हस्बैंड कहाँ है, तो पीआईओ उसको नहीं बोल सकता कि आप 30 दिन के बाद आइए। पीआईओ को वो इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में ही देनी है, बिकॉज इट इज कंसर्न विद द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ दैट पर्सन. So that is a clause which has been added here. कि 30 दिन is a normal information, but if it relates with the life and liberty of that person, then 48 घंटे में मुझे सूचना देनी है. पुलिस के जो पीआईओ है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसको 48 घंटे में उसकी वाइफ को सूचना देना पड़ेगा कि आपका हस्बैंड कहाँ है, कौन से थाने में है, अंडर विच रूल ही वाज, अंडर विच आईपीसी ही वाज अरेस्टेड. भारत के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं मिली तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप बाय एज्यूमिंग कि दैट इट इज डीम्ड रिफ्यूज्ड. इट इज डीम्ड एज रिफ्यूजल. अगर 30 दिन के अंदर मेरे को लेटर नहीं मिलता है, आपको लेटर नहीं मिलता है सूचना का, तो you can go to the appellate officer. So it is called deemed refusal, which is not there in any of the act in the world. जो मैंने आपको बताया 125 देशों में ये एक्ट चल रहा है, वहां कहीं भी ये क्लॉज नहीं है, पेनल्टी क्लॉज नहीं है, डीम्ड रिफ्यूजल क्लॉज नहीं है, नंबर ऑफ डेज की कोई लिमिट नहीं है कि 30 डेज में देना ही है. सिंगापुर में जाइए आप, नॉर्वे कहाँ भी जाइए, 5 दिन में 2 दिन में नॉर्मल टाइम में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. वहां कोई भी क्लॉज नहीं है कि नंबर ऑफ डेज में आपको देना ही है. कुछ इसमें एग्जेम्पशन है मेरे को कि डिस्पैच एंड पेमेंट ऑफ द फी. जब मेरा पीरियड काउंट होता है 30 दिन का, वो आपके फीस देने के बाद में चालू होता है, और मैंने 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे दी है और आपको डिस्पैच के द्वारा 10 दिन बाद मिलती है, तो देयर इज नो फॉल्ट ऑन मी. आप बोलेंगे भाई 1.5 महीना हो गया, तो वही चलेगा. डेट के हिसाब से मेरे ऑफिस के डिस्पैच ने वो आपको 30 डेज के अंदर डिस्पैच कर दिया था आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द फी. बिकॉज मेनी टाइम आई फाउंड दैट टू हरेस मी, many people came and they gave me the application and later on I found that they are not deposited the fee at all. 10 rupees fee है, वो डिपॉजिट ही नहीं किया था. तो जस्ट टू हरेस मी और टू काउंट मी और टू चेक मी 30 डेज. तो वो मेरा को एक प्रोटेक्शन है कि फीस डिपॉजिट होने के 30 दिन की मेरा टाइम चालू होता है. इंटीमेशन शुड ऑल्सो कंटेन प्रोसीजर, अपील, टाइम लिमिट एंड प्रोसेस. जो मैं आपका सूचना दूंगा या उसको रिजेक्ट करूंगा, उसके अंदर मुझे आपको बताना है कि आपको आगे क्या करना है. आपको अपील करना है कितने दिन में, आपको अपीलेट अथॉरिटी कौन है, उसका नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पूरा प्रोसेस उसको दिखाना है. ऐसा नहीं कि सिंपली भी मैं सूचना आपको नहीं दूंगा जाइए, नो. मुझे पूरा उसको प्रोसीजर समझाना है, व्हाट नेक्स्ट एक्शन ही शुड टेक. यूनिकनेस ऑफ इंडियन आरटीआई, नो फी फॉर below poverty line public. If somebody comes to me with some information to be required, and if he shows me his BPL card, Government of India has given BPL card to all many persons who are below poverty line. If he shows me that BPL card, I will start his clock immediately. No need, he need not to deposit the fee. Fee की कोई जरूरत नहीं है. Then applicant should prove by way of certificate and document. मैंने आपको बताया कि वो उसको कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसका बीपीएल कार्ड, उसका वो दिखाना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी. नो फी फॉर पब्लिक अथॉरिटी फेल्स टू कंप्लाई टाइम लिमिट. अगर मैं 30 दिन का समय ओवरशूट करता हूं, नहीं देता हूं, वो फी he is liable to get the refund of 10 rupees. नोटिस पीरियड टू थर्ड पार्टी. अगर कोई मुझसे थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन पूछता है तो वो मुझे 5 दिन का समय देना पड़ेगा. मुझे किसी ने पूछा, किसी पंप मैन्युफैक्चरर ने, कि ज्योति पंप का ये मुझे इंफॉर्मेशन दो. So there is some information, technical information, or why we have selected Jyoti Pumps Baroda. I have asked the Jyoti Pump management within 5 days. If somebody wants this information from us, which we have,
that information is not nuclear power corporation's information, but वो information ज्योति पंप की है, but हमारी फाइल में है. So we are a third party. So I will ask that Jyoti Pump कि within 5 days can I part that information pertains to some technical information, some special achievement which they have done in their pump business, and I have to invite third party to make submission. And submission means to confirm that we can part that information. इसके लिए मुझे 10 दिन का ज्यादा समय दिया गया है. 30 days की जगह if the information pertains to third party मुझे 40 दिन का समय दिया गया है. 10 दिन का एक्स्ट्रा समय. भारत सरकार ने बोला है हर ऑफिस शुड हैव वन सीपीआईओ. सीपीआईओ को 10 सीपीआईओ एंड एसपीआईओ. उसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो अपीलेट अथॉरिटी है. उसके ऊपर जो अथॉरिटीज है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यू दिल्ली. If somebody is not satisfied with my answer, अगर वो मेरे अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है और वो भी बोलता है कि मिस्टर काकड़े has given this information, I am agreed with this information and I am satisfied कि ये आपको बराबर दिया गया है. इसके बाद as a public you have right to approach information commissioner. और भारत सरकार ने 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए हैं जहां कर आप अप्रोच कर सकते हैं. 30 डेज का मैंने आपको बताया अपील करने का टाइम दिया गया. 30 डेज. इफ यू आर नॉट एग्रीड विथ माय इंफॉर्मेशन, अपीलेट अथॉरिटी शुड रिप्लाई यू 90 दिन. अपीलेट अथॉरिटी शुड नॉट टेक मोर देन 90 days टू रिप्लाई योर आंसर टू योर अपील. Penalty. This is a very uniqueness in Indian law. For each day delay, if I delay my information 10 days, so I have to pay 2,500 rupees. 250 rupees प्रतिदिन मुझे पेनल्टी देना है. मैक्सिमम पेनल्टी की लिस्ट 25,000 रुपए है. There are many PIOs in last 10 years. We found that many PIOs and many APIOs were fined by इंफॉर्मेशन कमिश्नर कि आपने सूचना समय पर नहीं दी है. और यूनिकनेस ऑफ दिस एक्ट, ये पेनल्टी आपको देनी है. आपको सैलरी से आपको देनी है. अगर मैं कोई सूचना नहीं देता हूं तो NPCIL will not pay that penalty. If some information commissioner applies some 2,500 penalty on me, NPCIL will not pay. I have to bear that cost. So I have to be very punctual and very sincere for parting the information. Courts are barred. You cannot, after information commissioner's decision, you cannot approach any court in India except High Court. कि भैया ये जो मैंने सूचना मांगी थी ये मुझे बराबर नहीं मिली. अपीलेट ऑफिसर बोलता है ये बराबर है. इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बोलता है बराबर है. तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. नॉट इन नॉर्मल कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स. ये एक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया सिटीजन को एम्पावर करता है कि दे कैन ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी और एनी प्राइवेट authority which comes under public authority, and you can use that information for your benefit. जैसा कि मैं एक उदाहरण दूंगा. बम्बई में एक मेरे मित्र ने किसी बिल्डर के साथ एक फ्लैट बुक किया 24th फ्लोर पे, और उसके बाद में जब उसने सूचना मांगी, बुक करके रजिस्ट्रेशन भी हो गया 24th फ्लोर में फ्लैट का, और उसने फिर कारपोरेशन ऑफिस से सूचना मांगी उस बिल्डर के उस प्रोजेक्ट के बारे में, तब उसको मालूम पड़ा कि उसका प्रोजेक्ट ओनली 15 फ्लोर तक ही अलाउड है. उसको परमिशन खाली 15 फ्लोर की ही दी है, जबकि उसने 16वें से 25th फ्लोर तक के सब फ्लैट बुक करके बेच दिए थे. तो इस तरह से ये सूचना अधिकार नॉर्मल आदमी के हाथ में एक टूल है जो कि भारत सरकार ने दिया है, पावरफुल टूल विच दे कैन यूज फॉर देयर बेनिफिट. और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. डे टू डे अफेयर्स में आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से इनडायरेक्टली करप्शन कम हो जाएगा. करप्शन कम हो जाएगा, विच गवर्नमेंट वांट्स.
ये 3 वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लॉग इन करके इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005 के बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, एंड यू विल बी getting that information from PIO of these organizations. There is a PIO who replies for your queries, any queries on this RTI 2005. Thank you. With this, I am completing my presentation. और आपको इस बारे में कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you, sir. Such a nice presentation it was, and now I request all the delegates to put your questions in the chat box, or they can unmute yourselves and ask directly. So इसमें I have one question, and I think कटारिया साहब ने एक दिन मुझसे पूछा था, I think सब you remember कि अगर कहीं से कितनी इंफॉर्मेशन, अगर किसी प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो how a person can take. I think Kataria sir will remember, and that's how this whole process started. So we have one of the best persons in RTI, Mr. Kakade ji. तो सब ये बताइए काकड़े साहब, स्कूल से अगर इंफॉर्मेशन लेनी है कि एक मिनट थोड़ा जोर से बोलेंगे मेरे को. हाँ, कि अगर किसी स्कूल से इंफॉर्मेशन लेनी हो ना, स्कूल से कि तुमने कितने एडमिशन दिए, है ना, जैसे किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है और उस प्राइवेट स्कूल है, हाँ, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज दैट स्कूल कम्स अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट. इनडायरेक्टली ऐसा मेरे साथ 2 केस में ऐसा हुआ था. जो स्कीम में मैं जहाँ रहता हूँ वहां पास के स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, दे वर आस्किंग डोनेशंस एंड दे वर नॉट गिविंग एडमिशन. तो वो जो आरटीआई में जो मेरे पास आया था कंसल्टेंट, उसको मैंने महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड के पीआईओ के पास भेजा. मंत्रालय में बैठता है महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड, एंड दिस प्राइवेट स्कूल कम्स अंडर दैट अथॉरिटी. व्हाई? बिकॉज उस स्कूल के बच्चे 12th का बोर्ड का एग्जाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का देते हैं. सो इनडायरेक्टली दे आर अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट. उस स्कूल के बच्चे 12th का बोर्ड एग्जाम किसका देते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. 10th का बोर्ड एग्जाम किसका देते हैं? सो दैट पीआईओ गॉट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट स्कूल एंड दे हैव गिवन, इट वाज प्रोवाइडेड. करेक्ट, थैंक यू. एक जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू नो कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ टीचर्स विद 10 ईयर एक्सपीरियंस, स्कूल से पूछना है आपको, तो स्कूल उसके तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स ही होते हैं कि जो स्कूलों में स्टैंडर्ड नाम, जैसे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं अपॉइंट हुआ तो मेरा ये ग्रेड में हो तो कितनी सैलरी है. तो ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नॉर्म्स फिक्स किए हुए हैं टीचर्स के, कि बेसिक टीचर्स इतने साल का एक्सपीरियंस, बीएड उसकी क्वालिफिकेशन है ना, उसके हिसाब से. तो दैट इन्फॉर्मेशन आपको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का पीआईओ है ही विल गिव. और अगर उसके पास नहीं है तो वो स्कूल से मंगा के दे देगा. स्कूल की टीचर, आपके स्कूल में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, आपके स्कूल में टीचर किसी XYZ टीचर की सैलरी नहीं बताएगा ना. अगर ऐसे कोई, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक लिमिट है, जैसे आपने काफी कुछ स्लाइड में बता दिया कि कहाँ तक हम पूछ सकते हैं कि मतलब सपोज एक मिसेज XYZ है, उसकी सैलरी पूछनी है और वो बेचारी परेशान टीचर है, उसको 15,000 के ऊपर वो दे ही नहीं रहे 10 साल के बाद भी, है ना. और ये लोग स्कूल वाले सिग्नेचर ले लेते हैं, मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर 50,000 पे. तो मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन पूछनी हो कि मिसेज XYZ को कितनी सैलरी मिल रही है, तो आप पूछ सकते हैं क्या? नहीं, तो ये मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज वो प्राइवेट जो स्कूल है वहां तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ही नहीं ना. तो वो दे आर कंपल्ड बाय दिस लॉ टू अपॉइंट ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू गिव यू इंफॉर्मेशन. तो आपको महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे ही जाना पड़ेगा टू ऑब्टेन दिस एंड टू कंप्लेन. यू कैन मेक ए कंप्लेन, यू कैन मेक ए कंप्लेन. बट इंफॉर्मेशन वो मना कर सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो मना कर सकता है. हेलो, मैंने आपको बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज आरटीआई का मेन क्रिस्प इज पब्लिक इंटरेस्ट. तो मेरे को पूछा गया कि आपके एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का नॉमिनी क्या है, उसका क्या है. तो मैंने मालूम किया तो उसकी पत्नी ने पूछा था और उसकी पत्नी का डाइवर्स केस चल रहा था. तो इट इज ए पब्लिक इंटरेस्ट कि अगर सही सूचना दी जाए तो शी विल बी बेनिफिटेड. तो इन दैट वे पर्सनल इंटरेस्ट में
ये जो सूचना नहीं देने का क्लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। Wherever the public interest lies, all these clause of not giving information is not applicable. तो ये पब्लिक इंटरेस्ट हो गया कि भाई आपने सैलरी कितनी देते हैं और आप ग्रेड के हिसाब से बराबर देते हैं, या आप ज्यादा सैलरी कम देके ज्यादा पे साइन करवाते हैं, तो दे कैन अप्रोच द पीआईओ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। पर फर्स्ट टाइम में तो मना कर देगा शायद। मना तो करते थे, अपील पे जाइए, मैंने आपको बताया हर डिपार्टमेंट में एक अपीलेट अथॉरिटी है, तो आपको इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मना कर दिया है तो आपके पास राइट है, आप अपील में जाइए, और अपील मना करता है, अपीलेट अथॉरिटी भी मना कर दिए, यू कैन गो टू कमिश्नर एंड द फुल केस विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड यू विल दैट लेडी और whosoever is affected person will get the benefit of this RTI. चलिए, थैंक यू। कटारिया साहब ने हाथ खड़ा किया। कटारिया साहब। थैंक यू सुरेश शर्मा जी, थैंक यू रंजीत राज काकड़े साहब। इट वाज very nicely you explained, I think, every aspect of RTI. But बहुत अच्छा लगा, बहुत काफी information, because we are not aware कि इतना कुछ RTI में है। There are two questions I have. Yes. One is about how much one can misuse this RTI, because you are in business, you are in market, and it can be used against you by your competitors. One is this. Yes. Second question, now we are also there is a contract between the organization and the owner of the company, operator of the company. Okay. Now sometime this contract is also cancelled or you are blacklisted, and there is no clause in this contract. And then how one can use the RTI to get the right information? Maybe what happened in a big organization is a one-man show who is dealing with the contract, and he may not be happy with the organization or with the particular person or particular project manager or all. Now, how you will get the right information from where? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी प्राइवेट बॉडीज है, those who doesn't have an information officer, or but they are under some public authority of government of India. Some of the other, जैसे मैंने बताया बुरेली का एक बैंक था, छोटा सा बैंक था, बट आरबीआई के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने उस बैंक के बारे में सूचना मेरे को मंगा के दी, क्योंकि आरबीआई का रूल दे हैव टू फॉलो, ईच बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अंडर द कवर ऑफ आरबीआई रूल। तो सिमिलरली कोई जो कंपनीज होती हैं वो दे आर अंडर कंपनीज एक्ट, they are registered with the companies. So if you approach the information officer of registrar of companies, they will help you to get the information about that company in detail. But that will be very long process. Very long process. Yes, that is there. But उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि Indian law में there is a uniqueness कि there time limit, penalty and everything is there, which is not there in any other countries. तो फिर भी misuse तो होता ही है, फिर भी तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। मेरे पास ज्योति पंप का पूछा है, ज्योति पंप वाला मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, ज्योति पंप वाला मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, तो हाउ कैन आई रिप्लाई? सो ऐसे इंडिया में काफी लूप होल लोग ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने पहले पूछा कि हाउ मिसयूज, इट इज बीइंग मिसयूज, आरटीआई इज बीइंग मिसयूज इन अंधेरी मुंबई। देयर इज अ मैन विद अ ऑफिस विद 10 पर्सन इन अ फुल फ्लेज ऑफिस, एंड दे आर डूइंग एवरी डे थाउजेंड एप्लीकेशंस अंडर आरटीआई। 10 रुपए का स्टैम्प लगा के कारपोरेशन में देके आ गए, ये एरिया में कितनी बिल्डिंगें बन रही है, उनका ड्राइंग दे दो, उनका अप्रूवल दे दो, ओनर कौन है, कितने फ्लोर का परमिशन दिया है, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग दे आर ओनली अप्रोचिंग दैट बिल्डर, यू आर मिसयूजिंग एफएसआई, ये तुमने बालकनी को ऐड कर लिया है, आपका जो ओरिजिनल अप्रूवल ड्राइंग है उसमें ये है ही नहीं, तो मुझे 50,000 रुपए दे दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा काम रुकवा दूंगा, मैं तुम्हारा काम रुकवा दूंगा। तो देयर आर ऑफिसेस, फुल फ्लेज ऑफिसेस वर्किंग इन मुंबई, सम प्लेसेस एज पर माय इंफॉर्मेशन, दे आर वर्किंग ऑन मिसयूज ऑफ आरटीआई। So they have made it a business. Yes, they have made their business, है ना? To extract money from the builder. एक बार शुरू में वो आ गया कि ये बिल्डिंग का प्रपोजल कितने फ्लोर का है, 10 फ्लोर का है, कितना एफएसआई है, एवरीथिंग दे नो फ्रॉम दैट कॉर्पोरेशन ऑफिस। बट जब बिल्डिंग बन जाती है तो मालूम पड़ता है कि बालकनी ऐड हो गई रूम में, या कुछ
प्रोजेक्शंस उसने ज्यादा निकाल लिए हैं, तो वो बिल्डर के पास अप्रोच करते हैं कि नाउ यू हैव टू गिव अस सब्सटेंशियल अमाउंट, otherwise we will get your work stopped, or I will not will put a hindrance in getting occupation certificate. वो बिल्डर बेचारा 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए दे देता है. Yeah. Similarly, information and data security, and there is also IT law is there. Now, how the IT law and the RTI? नहीं नहीं, uh, IT law और ITI both are different, both are independent, है ना, कुछ संबंध नहीं है. नहीं संबंध साहब, उसमें तो उसका नाम ही साइबर सिक्योरिटी कर दिया ना, साइबर लॉज. इसको हाँ, इंफॉर्मेशन Cyber कम law, बोलते हैं, yeah. साइबर, साइबर वर्ड पहले यूज करते हैं. साइबर वॉट एवर इज रिलेटेड टू वो डिजिटल, है ना, एंड कंप्यूटर्स, उसको साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और साइबर वर्ड कर दिया. ये इंफॉर्मेशन इज प्योरली कहानी वाला इंफॉर्मेशन, कहानी. और काकड़े साहब के पास तो इतनी कहानी है कि पूरी बुक लिख सकते हैं, इतनी कहानी है इनके पास. मतलब इनका तो यानी अगर ये याद करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी 1200-1500 पेज की बुक लिख सकते हैं. Good, good. I think you should आप come है ना, हेलो कटरिया सर, आप राजस्थान से, मुझे एक ने पूछा था ये जो सैटेलाइट गिरते हैं या धूमकेतु उल्का पिंड गिरते हैं ना कई बार आकाश में से, उल्का पिंड, हाँ, उल्का आया, हाँ, तो उल्का वो पिंड। राजस्थान के ऊपर गिर जाए तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. डोम के ऊपर, रिएक्टर डोम के ऊपर इफ सम दिस इफ दे फॉल, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. तो मैंने कहा ये तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी हुई है, पिक्चर ये थोड़ी कहीं रिकॉर्ड में है या फाइल में है, या है ना. तो इस तरह से कई बार वेग भी सवाल पूछे जाते हैं कई बार. Yes, अच्छा, yes. काकड़े साहब को और कटारिया साहब के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं. कटारिया साहब, काकड़े साहब वाज द फर्स्ट पर्सन, जब जैतापुर का लैंड एक्विजिशन हो रहा था ना, तो जैसे मैन का लैंडिंग होता है ना मून पे, सबसे पहले इनकी लैंडिंग हुई थी उस साइट पे. और इनके पास जैतापुर के तो इतने क्वेरीज थी, इतनी क्वेरीज थी. काकड़े साहब, अभी कटारिया साहब का एक दिन मूड आ गया कि जैतापुर देख के आते हैं, तो हम लोग गए जैतापुर यहाँ से इनकी गाड़ी में, और वो कोस्टल वाला रूट पकड़ के गए थे हम लोग. मतलब है ना, वहां से गुहागार से और वहां से. तो अभी तो वहां तो साइट पे एंट्री भी बैन की हुई है साइट पे. तो पर काकड़े साहब के पास बहुत सब, वहां का किस तरह की आरटीआई Yeah. आपके पास आती थी, जरा एक दो I बताइए. think we have Jyoti counselor. Sir, there is one question. Yeah. Yeah, Please asked go by ahead. Yogi I think Sandekar, you sir. have been very enthusiastic to ask the question. Sorry. Okay, carry on, please. Problem, sir. No problem, sir. Asked by Yogi Sandekar, sir. Any criteria or competency requirement for appointing PIO by any organization? नहीं मैं समझा नहीं. मैं सर क्राइटेरिया पूछ रहे हैं कि पीआईओ बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं, होता है क्या? कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आदमी सीनियर है, सीनियर आदमी ही शुड बी सीनियर इनफ. बिकॉज मुझसे अगर किसी परचेज डिपार्टमेंट से फाइल मांगी गई, मैं मांग रहा हूँ, तो वो उसने मुझे देना चाहिए. इफ सम इंफॉर्मेशन इज कम कि दिस परचेज ऑर्डर का हमको कॉपी चाहिए, तो हमारा जो सीएमएम डिपार्टमेंट है वहां का ईडी शुड लिसन टू मी. ही शुड इमीडिएटली, ही शुड नॉट आस्क मी व्हाई यू वांट, ही शुड इमीडिएटली पार्ट दैट फाइल टू मी. और कौन सी सूचना देनी है, कौन सी नहीं देनी है, दैट आई विल डिसाइड. बट ऐसा नहीं होना चाहिए अगर किसी जूनियर आदमी को बना दिया, कोई नया आया है, तो वो जो डायरेक्टर ऑफ दैट परचेज डिपार्टमेंट विल टेल के ना आई विल आस्क सीएमडी, आई विल नॉट गिव यू, और आई विल डू, बहाना बना सकता है. तो वो दैट आदमी शुड बी सीनियर इनफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, who has a very cordial relation with all group, and to get the, because as a CPIO I will not have any information with me. If some information is being asked, I have to get it from the different departments, from the different sections. So if I am not senior enough, or if I am not cordial in my public relations, I will not get any information, and in that case I will fail to give information and I will be penalized. उनको कुछ नहीं होगा. डायरेक्टर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप विल नॉट हैव एनीथिंग. आई विल बी penalized for not giving the information within 30 days. But Jyoti ji ka question is very, very valid. If the person is not competent, how is going to deal? Because he may keep on rejecting the applications, because it has to be competent with the laws. Now, RTA laws, there were a lot of clauses. Yes. And where it has to be thorough, the person, is there is any qualification
person has to undergo some exams or any competence, because he has to be very competent to deal, because he has to deal globally. So many issues are there which may crop up. इसके लिए for this है ना, the act was implemented in 2005 and after my appointment as a CPIO, I was trained in New Delhi for 1 month. 1 month for all these clauses and what to give and what not to give and why not to give, no. इसके लिए ये clauses के लिए सब इंडिया के CPIOs को दिल्ली की मिनिस्ट्री में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए गए थे, बिकॉज ये नया एक्ट था तो किसी को कुछ मालूम नहीं था, तो इसके लिए फिर एक्ट ये जो ट्रेनिंग वगैरह हुई और फिर बाद में वर्क एक्सपीरियंस, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन हैज गॉट सम 13-14 साइट्स, कल्पाकम, मद्रास, वो सब दूर का कोई ना कोई क्वेश्चन आता था, तो देयर वर सम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पर डे, तो उसके कारण भी अनुभव आता गया भी क्या देना है क्या नहीं देना है। और देयर आर सम डिसीजंस ऑफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम आरटीआई कि भैया ये तुमने नहीं दिया, ये गलत किया है, ये दिया है बराबर किया है, तो जो डिसीजंस होते हैं वो भी उनकी वेबसाइट पे रहते हैं आरटीआई की, तो दैट डिसीजंस आल्सो यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन improve in your decision information giving method. Thank you, sir. I think Khanna ji is having some question. Khanna साहब, एक चैट बॉक्स में विकास आहिरे का क्वेश्चन है, आई थिंक ज्योति कैन रीड दैट क्वेश्चन। Yes, sir. I'll read that. As per Vikas Ahire, sir, is schools having ICSE or CBSE board comes under the RTA Act? If no, how one can get the required information in that case? स्कूल का फिर से बोलिए। Yes. Is schools having ICSE or CBSE board comes under the RTA Act? If no, how one can get the required information in that case? ICICI बोर्ड का सब वो चैट में पढ़ेंगे, काकड़े सब चैट में पढ़ सकते हैं आप, चैट में। काकड़े साहब, जैसे आपने बताया था कि स्कूल का यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप, बिकॉज द स्कूल्स आर अफिलिएटेड अंडर स्टेट बोर्ड दैट इज एसएससी और एचएससी, उसी तरह सर दो और बोर्ड्स हैं आईसीएसई या सीबीएसई, हाँ, उनपे ये लागू होगा क्या? ऐसा यस बिकॉज देयर आल्सो उनका बच्चे लोग भी गवर्नमेंट का ही जो है बोर्ड है आईसीएसई, वहाँ अपियर होते होंगे ना, महाराष्ट्र के बच्चे महाराष्ट्र के बोर्ड में अपियर होते हैं, आईसीआईसीआई ये जो अदर जो दो लोग हैं उनके ऊपर भी तो गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी होगी ना जो एग्जाम कंडक्ट करती होगी, उस वहां पर पीआईओ होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी वहां पर पीआईओ होगा, सो दैट फेलो विल हेल्प यू। थैंक यू सर। सर लेट इंडिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी, ऑफिस, इवन ये किसी दुकान पे चले जाओ आप, प्राइवेट दुकान है, शॉप, he is also under some shop and establishment act of the corporation and that corporation has a PIO, तो कोई भी छूटा नहीं है, ये एक्ट का इतना वाइड वो है स्प्रेड है, मालूम होना चाहिए, बस आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका इट इज वेरी क्लियर, इसका मतलब सुमित जी आई थिंक वी कैन प्रिज्यूम नो, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पीआईओ है वो सारे बोर्ड्स जितने भी उसके अंडर में आते हैं सबका इंफॉर्मेशन हम उससे ले सकते हैं, है ना सर काकड़े साहब? मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा ना इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सर, because ultimately all of them are considered equivalent, like the ICSE for the 11th and 12th becomes the ISC board, and ISC board, ICSE board, or the CBSE board. Now they follow different patterns of education, one follows the NCERT and the others, but they all come under a regulator, so obviously they would all meet the requirements of RTI. Kakade Sahab, let me compliment you, sir. Amazing clarity on the subject, superb hold, amazing oratorship. This has been one of the most smooth sailing and commanding sessions that I have witnessed within our gamut. I appreciate your depth of knowledge, sir. It's been amazing, sir. I'd request the people, if they have any questions, please come forward and ask your questions, sir. Yes. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. मैं सुनील खन्ना बोल रहा हूँ। सर आपने एक एडवाइस दिया कि within 30 days you have to give the reply. Now this, but for that you have to take the fees in advance. Only after the deposition of the fees days can be counted. Now suppose while you are giving the reply, suppose after 30 days you say that I have to send 30 papers, and for that you have to deposit 60 rupees.
then how much additional time you will get? Additional Time you will get. Because 30 days नहीं, has मेरे been लिए over. फिक्स है 30 days, and if the information belongs to some other third party, then I have been given 10 more days. That's all. 40 days is my limit. I have to act in that 40 days. सत्यु आना चाहेगा? तो maximum 40 days. 40 days because is my time limit. उसके ऊपर कोई भी time limit का जरूरत नहीं, मेरे को नहीं है. And it will be treated as deemed refusal. मेरे को excuse है ही नहीं कि मेरे पास नहीं है या कुछ है. It will be treated as deemed refusal कि भी CPIO is not giving the information and that fellow can approach appellate authority. So my question was that after within 30 days you got the information and you are ready to give the information, but you require certain amount of the fees as 2 rupees per paper or whatever is the actual cost, then you will ask So I for will that inform cost him. and that cost is Hello. to be deposited. हाँ, उसके लिए I will inform him कि भाई the information which you have asked 40 पेज का है, 50 पेज का है, and you have to deposit 100 rupees in my office, and after depositing you come with the receipt and collect your information. Right. So for will that keep for that you will get an order till the time he is depositing the money plus 1 more day. नहीं, क्या शर्मा जी क्या बोले? ये बोल रहे हैं सब कि आपने 60 रुपए एक्स्ट्रा मांगे, 60 रुपीज आपने जीरोक्स के, उसका फिर टाइम और मिलेगा आपको 10 दिन का. नहीं, अगर वो नहीं जमा कराता है तो नहीं अगर वो 60 रुपए जमा नहीं करा के रिसीट लेके आता है तो मेरे पे उतना दिन का टाइम है ना. दैट इज ऑन हिज पार्ट. ये सारा 40, ये आपको सारा 40 दिन में करना है, मतलब ये सारा सब कुछ डिपॉजिट से लेके सारा. यस, है ना, वो 40 की लिमिट है. मतलब इसका मतलब आप 1 महीने पहले उनको इन्फॉर्म करोगे, 1 महीने पहले, 1 महीने के पहले. नॉर्मल इंफॉर्मेशन 30 days, नॉर्मल इंफॉर्मेशन एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन विच आई हैव बट इट बिलोंग्स टू थर्ड पार्टी, तो उसके लिए 10 दिन का एक्स्ट्रा. तो इस तरह से 40 days का टाइम है. और ये पैसा लेने देने में जो टाइम गया उनका वो क्वेरी है, मतलब उनकी वो कंसर्न है शायद. ये तो 50 रुपए 60 रुपए जमा करने में उसमें भी तो टाइम लगता है ना. फिर कई लोग करते हैं, बोलते हैं नहीं कर रहे, नहीं जमा किया है नहीं, या इतनी महंगी 50 रुपए मुझे नहीं देना इस इंफॉर्मेशन के, तो ही इज नॉट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. नहीं सर, ऐसा है कि मैंने डिपॉजिट किया, 30 डेज हो गए, उसके बाद मैंने आपके मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई आपको 60 रुपए जमा करने. हाँ, मैंने 60 रुपए जमा कर दिए, लेकिन 60 रुपए जमा मैंने किए 2 तारीख को. फॉर एग्जाम्पल 2 फरवरी को मैंने 7 रुपए जमा कर दिए, आपके पास इंटीमेशन भेजी मैंने. हाँ. उसके अंदर 2 दिन और लग गए, 4 तारीख को आपको इंटीमेशन मिल गई कि यहाँ पैसा जमा हो. हाँ. तो उस 4 तारीख के बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा डे मिलेगा या 4 को ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी या 5 को? नहीं, हेलो, मैं उनको कितने रुपए जमा कराना है वो मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन होने के बाद ही इन्फॉर्म करूंगा. सो इंफॉर्मेशन इज रेडी विथ मी. When I will have all the information with me, then only I will tell कि आप इतने रुपए जमा कराइए. सर मैंने पैसा जमा कर दिया, आपने मेरे से 60 रुपए मांगे. हाँ. मैंने 60 रुपए जमा कर दिए 2 फरवरी को. हाँ. राइट. और आपके पास मैंने मेल दिया, इंटीमेशन दी, वो भी 4 फरवरी को आपके पास पहुंच गई. हाँ. तो अब इंटीमेशन जो है मेरे पास वो पहुंचेगी 4 फरवरी को, 5 फरवरी को या 6 फरवरी को? Yes. So I am not responsible. It is a law as per RTI Act. I am ready with me the day I have informed you कि इतने रुपए भरो. Information is ready with me. Right. My dispatch, my office dispatch will sign that letter कि भैया 1 फरवरी को काकड़े का लेटर चला गया है कि 60 रुपए जमा करो. That's all. So I am, मेरा जो ऑफिस का डिस्पैच है ना, मैंने स्पेशली उसको बहुत ही अप टू डेट एंड बहुत ही सिंसियरली रखा गया था. Because every crisp or penalty lies on that dispatch date. गवर्नमेंट में आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पे आपको जो इनकम टैक्स ऑफिस हुआ, कोई भी हुआ, वो लेटर डेट पे मिलता है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मैंने आपको 1 फरवरी को लेटर भेज दिया, अब मेरा टाइम खत्म हो गया. तो आप कलेक्ट करो, 10 दिन बाद जमा करो, 15 दिन बाद इंफॉर्मेशन लेने आओ. नो आई एम नॉट राइट सर. लेकिन एक चीज इसके अंदर थोड़ी सी मेरे को गलत लग रही है. जैसे आपने कहा कि 30 डेज का टाइम है. हाँ. अब आपने फर्स्ट डे जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई, आपने फर्स्ट डे इंफॉर्मेशन मांगी. हाँ. डिपार्टमेंट के आदमी ने आपको देने में 31 दिन लगा दिए. हाँ.
Yes. आप गलती तो आपकी नहीं हुई, हाँ। 31 दिन तो 31वां दिन तो Yes. डिपार्टमेंट ने लगाया है, Yes. बट पेनल्टी आप पे लग जाती है। पेनल्टी मेरे पे लग जाएगी ऐसा। दिस इज दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ना, सीनियर मैन विद अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन should be appointed as CPIO. नहीं तो, Because I have to coordinate as NPCIL, purchase कभी- department, administration, HR, पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइल ह्यूमन HR डिपार्टमेंट पे रहती है, तो आई हैव टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कुछ मांगी तो आई हैव टू बी वेरी कॉर्डियल विद ऑल द डिपार्टमेंट एंड आई हैव टू फॉलो दैट। मैंने पहले दिन मेरे पे एप्लीकेशन आई, मैंने उनको बोल दिया ये मुझे चाहिए, 3 दिन बाद ही मैं पहुंच जाता हूँ, भाई क्या हो गया, नहीं हुआ आज करो कल करो, बिकॉज मेरा तो क्लॉक स्टार्ट हो गया 30 डेज का। वही कह रहा हूँ, यू आर नॉट हैविंग वन एप्लीकेशन, यू विल बी हैविंग नंबर्स ऑफ द एप्लीकेशंस। यस बट खन्ना साहब, लेट मी टेल यू हियर कि जैसे सुनते हैं ना लोग कि आरटीआई ऑफिसर से आया है क्वेरी, वो लोग एकदम सावधान हो जाते हैं एक्चुअली, बिकॉज बहुत सीरियसली लिया जाता है आरटीआई को, मतलब डिपार्टमेंट्स में। ये आरटीआई is equivalent to some kind of a inquiry kind of thing only, मतलब उतने सीरियसली लोग लेते हैं उस बात को। अभी कहीं भी मतलब अगर मेरे कलीग को पता लगता है कि उसके डिपार्टमेंट आरटीआई आए तो वो लोग बहुत सावधान होते हैं और सीपीआईओ से पूरा कॉपरेट करते हैं, फिर वो मतलब बिकॉज नहीं तो बाद में क्या, जो फिर वो बवाल होगा ना, फिर वो सबको भुगतना पड़ेगा इंक्लूडिंग दिस पर्सन। पहली बात तो उसकी आरटीआई आई क्यों, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो पीपल कॉपरेट, बाय एंड लार्ज पीपल कॉपरेट इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू सीपीआईओ। हाँ नहीं, दैट्स 100% करेक्ट सर, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि ये अंदर जैसे साहब ने बताया अभी कि कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ नहीं देनी है, और कई दफा लोग इस चक्कर के अंदर फंस जाते हैं और कभी कभी लेट होता है। साहब अब वो तो है ना, वी कांट डू एनीथिंग, लिबर्टी और जस्टिस और नेशन के नाम पे फिर है ना, देयर इज नो लिमिट, जनरली मिल जाती है, जनरली वैसे मिल रही है, वैसे तो मैं बताऊं आपको इन नॉर्मल केसेस मिल जाती है, मिल रही है, सब मिल रही है। अब आप नॉर्मल केसेस मिल जाती है ना, फिर फाइनली अगर Misuse- कई बार क्या होता है, अगर What अड़ ही I- जाता है डिपार्टमेंट की नहीं देनी है तो what I found that people are misusing nowadays this all RTI Act. ये बहुत ज्यादा मिसयूज है। इसी के लिए मैं एक और चीज जानना चाह रहा था कि अगर एक आरटीआई लगाई किसी ने, तो कोई ऐसी साइट बनी है क्या जिसके अंदर सारी आरटीआई महीने भर की या साल भर की उन्हें एक साथ लिस्ट करके दे दी? क्योंकि अगेन एंड अगेन सिमिलर आरटीआई आर आल्सो बीइंग फॉलोड। और जो मिसयूज है, अगर वो कोई एक ऐसा बैनर बना हुआ है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो मिसयूज कम हो जाएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल। And sometime this misuse has enlightened me also. मेरे को भी मालूम पड़ा कि अरे ये मेरे से गलती हो गई। For example, I will tell, ये जैतापुर जो प्रोजेक्ट आने वाला था, जैतापुर अणु ऊर्जा प्रकल्प ना, तो वहाँ के जो किसान लोग, ये जो खेती वाले लोग थे, सब बोल रहे हमारा आम खराब हो जाएगा, आप हमारे समुद्र को खराब कर दोगे, आप जो डिस्चार्ज करोगे सी में, तो आप समुद्र, हमारा सी वाटर खराब हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, कोकन बेल्ट का पूरा मैंगो खराब हो जाएगा, ऐसे लाइक उनको क्वेरीज थी काफी। तो एज ए पब्लिक अवेयरनेस हेड उनको सब समझाया, और मैंने उनको बोला कि आपको मैं एक काम कर सकता हूँ कि महाराष्ट्र में ही एक तारापुर प्रोजेक्ट है हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि समुद्र किनारे है और पिछले 45 साल से चल रहा है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द कंट्री वाज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इट इज वेरी नियर टू द सी, पालघर के आसपास चिक्कू बहुत होते हैं खाने के। मैंने कहा तो, और मैंने उनको सबको ऑफर किया कि भाई आपका जो वहाँ का सरपंच था, उसको बोला कि आप आपके गांव के जो लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन सबको हम विजिट करा सकते हैं हमारे तारापुर प्लांट की, है ना, तो यू कैन हैव फर्स्ट हैंड फीलिंग कि भैया जो महाराष्ट्र में ही एक प्रोजेक्ट है वो, है ना, आई एम नॉट टेकिंग यू टू अदर स्टेट, तमिलनाडु और एनीवेयर, नो, तो आप आइए, हम आपको सब दिखाएंगे। तो वो एग्री हो गए। तो मैंने उनको बोला आप 40 लोग का लिस्ट दे दीजिए मुझे, कौन आएगा विजिट करने, उनके डिटेल के साथ में, बिकॉज दोज ऑल विल एंटर तारापुर पावर स्टेशन, तो उनके लिए पास बनाने पड़ेंगे, विजिटिंग पास वगैरह, तो मेरे को ऑथेंटिसिटी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह सब नंबर उनका। तो उन सब, वो जो वहाँ का वो था सरपंच उस गांव का, राजापुर गांव बोलते हैं उसको, उसने मुझे लिस्ट दे दी 40 आदमियों की। मैं उन सबको एक वोल्वो कार से लेके तारापुर गया, तारापुर के गेस्ट में उनको रुकाया, गेस्ट हाउस में हमारे, तारापुर प्लांट दिखाया उनको, एक दिन समुद्र के आसपास छोड़ दिया कि भाई जो फिशरमैन है उनसे आप डिस्कस कीजिए,
कि लास्ट जी। 40 years में हाउ दे आर अफेक्टेड विद आवर पावर प्लांट, जी और फिर बाद में उनको जो चिक्कू के बगीचे वहां भी भेजा कि आप उनसे भी पूछिए कि किसी का चिक्कू खराब हो गया है क्या, या रेडिएशन के कारण, या कुछ जो भी आपके मन में शंका है। जी जी तो सब 2 दिन की विजिट के बाद में वो सब लोग सेटिस्फाई हो गए कि यस यस वी फाउंड दैट देयर इज नो हार्म विद द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन पालघर, सो अननेसेसरली वी वर हैविंग मेनी डाउट्स दैट व्हेन दिस इट विल कम इन जैतापुर इट विल हार्म अस, ऐसा करके वो सेटिस्फाई होके आ गए। इस विजिट के 10 दिन बाद मेरे को आरटीआई में एक एप्लीकेशन आया। आरटीआई में किसी आदमी ने पूछा कि आपने जो 40 लोगों की विजिट कराई थी, काइंडली फर्निश देयर नेम एंड हाउ मच एक्सपेंडिचर यू हैव मेड ऑन देम। तो ये मुझे देना पड़ा, बिकॉज देना पड़ेगा। 40 आदमी के पास बने थे, पावर स्टेशन थे, उनके Yes, नाम yes, था, yes. लिस्ट था, सब कुछ था, और Yes, हाउ yes. मच एक्सपेंडिचर वी हैव डन, वो देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के अंदर एक्सपेंडिचर एनीवेयर इफ यू स्पेंड अ सिंगल रुपी या 10 रुपी यू हैव टू गिव द एक्सपेंडिचर। तो पूरा वो बस का किराया वराया जितना भी खर्चा हुआ सब दे दिया। उसने इंफॉर्मेशन लेने के बाद में हमारे चेयरमैन के पास कंप्लेन की, एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन काकोलकर साहब थे, उसके पास जी, जी। कंप्लेन की कि ये मिस्टर काकड़े जो 40 आदमियों को ले गए थे, इसमें से 20 आदमी इस गांव के ही रहने वाले नहीं है। वो जो सरपंच के फ्रेंड है औरंगाबाद के है और कहीं महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया के, उनका जैतापुर प्रोजेक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है और कोई संबंध भी नहीं है। अब बताइए, अब मैं कैसे उनकी, मैं तो सरपंच पे बिलीव किया कि भैया ये आपके गांव के लोग एजिटेट कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू एंड आई विल मिस जो आपका जो, तो ऐसा भी ये भी मिसयूज हुआ कि भाई मुझे मालूम पड़ गया कि वो अपने दोस्तों को ले गया, 10-20 आदमी गांव के ले लिया, बाकी 15-20 अपने सब फ्रेंड्स वगैरह को बुला लिया कि भाई पार्टी है, वो लोग उसमें जाएंगे, खाना पीना वीना सब, गेस्ट हाउस सब है, आइए। तो उनकी आउटिंग करा दी वो सरपंच ने 20 लोगों की। वही होता है साहब, वही बताया ना, इन सब चीजों के अगेंस्ट में बहुत लोग बहुत तरीके का फायदा उठाते हैं। आपने तो एग्जाम्पल दी बिल्डर्स वाली कि जबरदस्ती बिल्डर को वो है पकड़ना, लेकिन मेरा कहना ये था कि अगर यही चीज किसी उसके ऊपर लगी हुई है फोर्स पे, तो एवरीबॉडी नोस वहां पर रुक सकता है थोड़ा सा। यस, चलिए ज्योति, आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, Yes, आप वो भी so there's खत्म a कीजिए question. उसको। Yes, sir. Asked by again Vikas Ahire. If the information is such that it will take the more than 30 days time to get, or the authority of source of information is not reporting to the PIO, still the PIO is punished or not? the information, it will take 30 days time to get to the authority. no, इसके लिए there is no excuse. It is a PIO's responsibility. I have to get that information from purchase department, from HR department, whatever department. It is me and I will be penalized, and there is no excuse for this. I have to get that information, and for that I am empowered by my managing director and chairman. I can tell them that this department head is not giving me this information. So chairman office can send a some the PA or somebody can call that fellow, whatever Kakade wants that file de do immediately. So for that I was empowered by our CMD to get any information from any department. और अगर वो नहीं देता है तो कंप्लेन भी कर सकता था मैं कि सर 15 दिन हो गए अभी तक नहीं दी, मेरा टाइम जा रहा है 30 days. Yes, sir. Thank you. And there is one more question, sir. How does RTA Act deal the security issue of person who is asking the information? पूछने वाले की सिक्योरिटी क्या है, पूछने वाले की, वो देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। Deal with the security issue of person who is asking the information. हाँ, सिक्योरिटी के मैंने आपको बताया ना, पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, DRI के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि मेरे बाजू वाले घर में कल गोल्ड का कुछ आया है, आई एम डाउटिंग, और उन्होंने रेड की और मालूम पड़ा गोल्ड निकला, so that information तो is security threat of life to me because I have given the information. So they are protecting me, they are protecting the informant जहाँ से information मिली है। Okay, sir. Thank you. एक और, there is one more question I think before. Yes, sir. Asked by Gagi Purani. If respondent comes in appeal, is it necessary to give the information free of cost, or appellate authority can ask appellant to pay for copies? Yes, it is free of cost. If I fail to give in 30 days,
50 रुपए, 100 रुपए, 2 रुपए, जो भी इंफॉर्मेशन की कॉस्ट है, दैट आई विल नॉट चार्ज हिम, नीड नॉट टू चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट. Okay, sir. Thank you. There are no more questions. No more questions, I think. Yeah, there Sumit, are. would you like to say something like as usual? Nice, sir. Nothing from my side. I just said that I'm amazed by super presentation, sir. I would like to take this opportunity to thank Kakade Sahab. Amazing oratorship, amazing presentation, and superb depth of knowledge, sir. It was a lot of insights, a lot of things I didn't know about Right to Information Act, and it opened a lot of information arenas for me also to understand. Super presentation, sir. Really appreciate your time taking और आपने समय निकाला and इतना अपना knowledge share किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. Great. Over. Thank you, sir. Jyoti, over to you. My number is with you. If you have got any queries or anything, you can ask me. My mobile number is there with you. Regarding RTI, I can help you to reach direct to the information from where you will get the information. Yes, sir. Definitely. Thank you so much, sir. It was such a nice presentation, and it was very, very informative session. So thank you so much again, sir. Thank you so much. Now, with your permission, sir, I'll just share with I'll share my screen. Just a minute, sir. Jyoti, you're muted. So can you hear me? Is it Yeah, audible? please go ahead. Yeah. So next session on 4th February 2023. Topic will be training ISO 14971. It will be taken by Mr. Bhupesh Sood, sir. He will cover medical devices and application of risk management to medical devices. And last will be the question and answer session. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OSHAs, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. Feedback form. Please register on www.sadgunsang.org and go in your login and give feedback. On the behalf of the Sadguru Sangh team, I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for the presence and contribution to make this webinar a great success. Thank you all. Now we officially closing the session.